آج ایک ایسے جادوگر کا راز آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ پریگننٹ عورتوں کی بلی دے کر اپنی شکتیاں حاصل کیا کرتا تھا۔ یہ کہانی یا افسانہ نہیں، اسی کی کتاب سے لکھے ہوئے راز ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، کمپلیٹ سنیے گا، مزہ آئے گا۔ رتن لال پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس اماؤس کی رات کو کالی ماں کو ایک حاملہ عورت کی لاش بلی میں دے، اور اگر اس نے بلی نہ دی تو اس کا سب علم اس سے چھین لیا جائے گا، مگر اس کی جان بچانے کی بھی کوئی امید نہیں۔ رتن لال کالے علم اور سفلی علم کا ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ شیطان کی ایک خاص مدد کے لیے اس نے 40 دن کا ایک چلہ کیا تھا، جس میں اس کو ہر منگل کی رات ایک عورت کی بلی کالی ماں کو دینی تھی، اور اماؤس کی رات کو ایک حاملہ عورت جس کو 7 ماہ کا حمل ہو اس کی بلی دینی ہے۔ لاش تو آرام سے مل جاتی، مگر رتن لال کو زندہ عورت چاہیے تھی۔ بلی کے لیے خون کا پہلا قطرہ کالی ماں کی مورتی کو لگانا ہے۔ اس نے اپنے خاص بندے کو بھیجا اس کام کے لیے۔ اگر آج کل میں ایسی عورت مل گئی تو دنیا کی ہر طاقت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ میں ایسا کرتا ہوں، رمیش سے مدد لیتا ہوں۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال کیوں نہ آیا؟ رمیش ایک بدرو ہے جس کو رتن لال نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، جس سے وہ اپنے ہر ناجائز کام میں مدد لیتا تھا۔ آنکھ بند کر کے اپنی پڑھائی شروع کی۔ تھوڑی دیر میں ایک کالا دھواں کمرے میں آتا ہے، جس سے ایک عجیب بدشکل آدمی دھوتی پہنے نکلتا ہے۔ خیر ہے، آج رتن لال کو میری یاد کیسے آئی؟ بس تمہارے یہی طنز ہیں جس کی وجہ سے میں تمہیں آزاد نہیں کرتا۔ ایک کام تمہیں کرنا ہے اور 3 دن کے اندر کرنا ہے۔ مجھے ایک عورت چاہیے، مگر وہ پریگننٹ ہونی چاہیے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان تو دفناتے ہیں، کسی بھی قبرستان سے مل جائے گی۔ نہیں، مجھے لاش نہیں، جیتی جاگتی عورت چاہیے۔ بلی دیتے وقت اس کا تازہ خون چاہیے۔ تو یہ کام تم بھی کر سکتے ہو، میری مدد کیوں چاہیے؟ رمیش، یہ مت بھولو تم میری قید میں ہو، اور یہ کام میں بہت آرام سے کر سکتا تھا، مگر میں چلے کی حالت میں ہوں اور 40 دن یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ رتن لال، اگر میں تمہارا یہ کام کر دوں تم مجھے آزاد کر دو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ کام کر دو، پھر تم آزاد ہوگے، اور پھر وہ عورت کی روح تمہاری جگہ لے لے گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل تمہارا کام کر دوں گا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اس رات اس جادوگر اور رمیش کے درمیان ہوئی۔ یہاں سے سٹوری کا ایک دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو ان کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ مناہل کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ BCom کے آخری سال میں اس کی ملاقات طاہر سے ہوئی۔ طاہر مناہل کو دوست کی شادی میں ملا تھا۔ اسے پہلے ہی نظر میں مناہل پسند آ گئی۔ طاہر، اس کی خوش شکل اور باتوں میں مناہل ایسی آئی کہ اپنی بچپن کی منگنی بھی توڑ دی۔ مناہل کے ابو کو طاہر پہلی نظر میں ہی پسند نہ آیا۔ مناہل کے ابو کراچی کے بہت بڑے تاجر اور ایک امیر گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ لوگوں میں ان کی پہچان تھی، مگر مناہل طاہر کی محبت میں اندھی ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ طاہر کے ساتھ کورٹ میرج کر لے گی۔ جب شادی ہو جائے گی تو اس کے گھر والے مان جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، مناہل اور طاہر نے کورٹ میرج کر لی، اور وہ جیسے ہی گھر آئے، مناہل کو امید نہیں تھی کہ اس کے ابو اسے گھر سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے ابو نے مناہل سے تعلق ختم کر دیا اور صاف صاف بول دیا کہ وہ اس شادی کو قبول نہیں کرتے۔ اگر وہ اس وقت طاہر سے طلاق لے لے تو وہ اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ مناہل کو اس وقت اپنی محبت اپنے والدین کی عزت سے زیادہ لگی۔ اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
इस वक्त ताहिर को भी समझ ना आया कि क्या करे, क्योंकि उसने मनाहिल से शादी का फैसला मनाहिल के अब्बू की दौलत देखकर किया था। उसके जहन में भी ये ना था कि मनाहिल अपना घर छोड़ देगी। वो सोच रहा था मनाहिल के साथ शादी करके वो कराची में ही सेट हो जाएगा। और सबसे मुश्किल ये थी कि उसने मनाहिल को ये भी नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है। अब कराची में नहीं रह सकते थे। वो मनाहिल को लेकर सक्खर के करीब अपने गांव आ गया। यहाँ आकर मनाहिल को उसकी पहली बीवी का पता चला तो पहला प्यार और खुमार वहीं टूट गया। मगर अब क्या कर सकती थी जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो मनाहिल अपने वालिदैन के पास भी नहीं जा सकती थी। रतन लाल का आज का चिल्ला भी कामयाब हो गया था। अब उसे सिर्फ अमाउस की रात का इंतज़ार था, जिस रात उसको काली माता की खास शक्ति मिलने वाली थी और उसके लिए सिर्फ रमेश ही उसकी मदद कर सकता था। रतन लाल अपनी शैतानी कुव्वत से रमेश को फिर बुलाया। रमेश, क्या हुआ? अब तक तुम्हें एक औरत नहीं मिली। अमाउस की रात मेरे सर पर है। अगर इस अमाउस की रात में ये चिल्ला पूरा ना कर सका तो बस तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं अपने सब वादे भूल जाऊंगा जो मैंने तुमसे किए थे। रतन लाल, मैं तुम्हें अमाउस की रात वो औरत ला कर दे दूंगा। तुम मुझ पे भरोसा करो। इस रात तुम ज़रूर कामयाब होगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। दूसरी तरफ मनाहिल की शादी को अब 3 माह हो चुके थे। अब ताहिर का असली चेहरा बुरी तरह बेनकाब हो गया। ताहिर उसके सर से भी मनाहिल की खूबसूरती का भूत उतर गया। उसने मनाहिल से शादी दौलत के लिए की थी। जब दौलत ही ना मिली तो मनाहिल का क्या करता। मगर जिस तरह मनाहिल के घर वालों ने तलक ख़त्म किया, ताहिर के सब ख्वाब टूट गए। ताहिर सक्खर में वडेरे का ख़ास बंदा था। हर गलत काम में वडेरे का साथ देना और बदले में पैसा और शराब ताहिर को मिलती थी। आज भी वडेरे का हुक्म आया था कि कोई काम है, मिलने आओ। शाहजेब साईं, आपने याद किया। शाहजेब ताहिर का वडेरा था। हाँ बैठो ताहिर, तुम तो बाबा शहरी बीवी में हमें भूल ही गए। अरे ना साईं, आपको भूल कर मुझे कहाँ जाना है। बस सोचा कुछ और था और मिला कुछ और। चलो छोड़ो बाबा, आज विलायती शराब लाई है, ये पियो और मज़े लो। शुक्रिया साईं, आप मुझे याद तो करते हो। असल में इस वडेरे की नज़र ताहिर की बीवी मनाहिल पर थी, मगर वो इसको डायरेक्ट बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि ताहिर के पास उनके बहुत से राज थे और 6 माह बाद इलेक्शन होने वाले थे। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने बातों बातों में ताहिर को भड़काना शुरू किया कि तुम तो जानते हो बीवी वही होती है जो ख़ानदान वाले लाएं, बाकी सब तो यूज़ करने की चीज़ें होती हैं। ताहिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर ताहिर से कहा, तुम मुझे खुश कर दो अपनी उस बीवी के साथ। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, मैं वज़ीर बन जाऊंगा और तुम्हारी हर मुसीबत को मैं ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें इतना माल दूंगा कि तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। ताहिर की आंखों में लालच आ गई। वो तो पहले ही मनाहिल को लालच से शादी कर कर लाया था। वो कहने लगा, साईं मैं तो राज़ी हूँ, मगर वो एक शहरी लड़की है, कोई मसला हो गया तो देख लीजिए। अरे नहीं, बेफिक्र हो जाओ। जिनके वालिदैन अपनी बेटियों को छोड़ देना वो लावारिस ही होती हैं, और जो बेटी वालिदैन की इज़्ज़त ना करे दुनिया में उन्हें भी इज़्ज़त ना मिलती। जी साईं, ये बात तो 100 आने दुरुस्त बोली आपने। बस इस हफ्ते की रात मनाहिल आपके पास होगी। मनाहिल सोकर उठी तो ताहिर उसी वक्त घर आया। हालत से पता चल रहा था कि नशे में है, इसलिए मनाहिल चुप करके बैठी रही और उस वक्त को कोस रही थी जब ताहिर उसकी ज़िंदगी में आया। हफ्ते की रात को ताहिर घर आया और मनाहिल को तैयार होने का बोला कि दूसरे गांव उसके दोस्त की शादी है, वहां जाना है। मनाहिल भी बहुत खुश हुई कि इतने टाइम बाद ताहिर ने उससे प्यार से बात की
और कहीं साथ लेकर चलने का बोला। मनाहिल अपनी किस्मत पर खुश हो रही थी और किस्मत मनाहिल के आने वाले वक्त पर अफसोस कर रही थी। ताहिर मनाहिल को लेकर जब शाहजेब के फार्म हाउस पहुंचा तो वहां मनाहिल को शादी के कोई आसार नजर न आए। ताहिर, आपने तो बोला था शादी पे जाना है, मगर यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। इतने में शाहजेब भी कमरे से बाहर आता है। बिल्कुल मनाहिल, शादी है मगर तुम्हारी। क्या मतलब? मनाहिल, ताहिर इनका हाथ पकड़ते हुए, ये क्या बोल रहे हो? मैं आपकी बीवी हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम शाहजेब साईं को खुश कर दो, ये हमें खुश कर देंगे। मनाहिल तो ये सुनकर ज़मीन पर ही बैठ गई, जिसकी वजह से उसने अपने माँ बाप की इज्जत को रुसवा किया। आज उसी इंसान ने उसे बेइज्जत करके बेच दिया। उस रात मनाहिल ने अपनी इज्जत ही नहीं, अपनी मोहब्बत भी खो दी। और फिर वो सिर्फ उसी रात ही नहीं, शाहजेब जब चाहता उसे बुलवा लेता। अब तो उसके दोस्त भी उसके साथ ये सब करते थे। मनाहिल ने अपने वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की, मगर उसके घर वालों ने उसे साफ बोल दिया था कि वो उसके लिए मर चुके हैं। फिर मनाहिल प्रेग्नेंट हो गई। शाहजेब का बुलाना बंद हो गया, इसलिए ताहिर के जुल्म बढ़ गए, तो उसने ये बच्चा भी ज़ाया करना चाहा, जो कि एबॉर्शन ना हो सका। अब मनाहिल को अपने किए पर पछतावा होने लगा जब वो खुद माँ बनने वाली थी, कि कैसे उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अपने बहन भाइयों का दिल दुखाया, मगर अब बहुत लेट हो चुका था। दूसरी तरफ आज तीसरा दिन हो गया था, अभी तक रमेश किसी औरत की लाश नहीं लाया था। परसों अमावस की रात होगी, अगर ये चिल्ला पूरा ना हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। रतनलाल ने रमेश को बुलवाकर रमेश ने आते ही खुशखबरी दी कि औरत मिल गई है, अमावस की रात आपको उसकी लाश मिल जाएगी। अब मुझे ताकतवर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। काली माता की खास शक्ति मुझे मिलने वाली है। मनाहिल, तैयार हो जाओ, शाहजेब साईं ने तुम्हें बुलवाया है। ताहिर एक बार फिर नशे की हालत में उसे लेकर घर से निकला, मगर उस रात मनाहिल भाग गई और भागते भागते इतने दूर पहुंच चुकी थी कि उसे खुद भी मालूम ना था कि वो कहाँ गई। वो जाकर एक जगह बेहोश हो गई। वो किसी का कच्चा सा मकान था। जब होश में आई तो उसके पास एक बाबा जी थे। बाबा जी ने उसकी खिदमत की, उसे पानी पिलाया और उस पर दम किया। उसने सारी बात बाबा जी को बताई। वो बाबा जी बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने रमेश को भी काबू कर लिया और रमेश, जो कि मनाहिल पर नज़र रखे हुए था, उससे रतनलाल के सारे राज निकलवा लिए। अब बाबा जी ने पढ़ना शुरू किया तो ताहिर भी वहां पहुंच चुका था। बाबा जी ने कुछ ऐसा पढ़ा कि रतनलाल रमेश ने सबसे पहले ताहिर के हाथ काटे। हाथ काटने के बाद मनाहिल उठ खड़ी हुई और उसने जाके उसका मुंह खोला। उसने ज़ुबान बाहर निकाली तो मनाहिल ने अपने हाथ से उसकी ज़ुबान काट दी। मनाहिल, जो कि अब चीख रही थी कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की, अब तुम हिल नहीं सकते, तुमने मुझे बेइज्जत किया, मुझे लोगों के आगे पेश किया, तो तुम भी ना इस दुनिया के रहोगे ना अगली दुनिया के रहोगे। मौत को तरसोगे, रोज़ मौत की भीख मांगोगे, मगर इसे मौत नहीं आएगी। मनाहिल, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब गुनाहों को कबूल करता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस एक दफ़ा माफ़ कर दो। मैंने भी तुम्हारे सामने ऐसे ही हाथ जोड़े थे, तुम इन्हीं हाथों से पकड़कर मुझे गुनाह की दलदल में छोड़कर आ गए थे। अब तुम्हारे ये हाथ ही नहीं रहे, अब तुम कैसे हाथ जोड़ोगे? उस रात मनाहिल भी दम तोड़ गई, पर वो मरते मरते एक बेटी को जन्म दे गई। शाह साहब ने मनाहिल के घर वालों से रब्ता किया और सारी बात बताई।
मनाहिल के घर वाले पुलिस को लेकर रतन लाल के घर गए। वहाँ से मनाहिल की बेटी को अपने घर ले आए। उन्हें कोई शक नहीं था कि ये मनाहिल की बेटी ही है। वो पूरी बनी बनाही मनाहिल की कॉपी थी। आंखों का कलर, बाल सब मनाहिल के जैसे थे। जब पुलिस ने रतन लाल के घर की तलाशी ली, उन्हें सब काला जादू करने वाला सामान मिला। मस्जिद के मौलवी साहब के मशवरे से रतन लाल के घर को आग लगा दी गई। कोई भी इन चीज़ों को इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि ये भी हकीकत है कि दुनिया के ख़त्म होने तक पता नहीं कितने रतन लाल आएंगे। ये थी मनाहिल की स्टोरी और रतन लाल का जादू, जिसको नहायत शॉर्ट करके आपकी खिदमत में पेश किया गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।